Hello friends, welcome to Innovators Adda. I am Sanjay Chauhan and today in this session I am going to discuss about the quality assurance based MCQs. So in previous session we have covered the part 1 of unit 1. Now in this session we are going to cover the part 2 of unit 1. Understand? So what syllabus we are going to cover? As I have earlier mentioned that we are going to cover about the BP 606T, that is pharmaceutical quality assurance. So now coming on the whatever the syllabus we are going to discuss, we are going to discuss the whole syllabus. Understand? With the help of questions. So now coming on the first question. Good manufacturing practice GMP is associated with. Just read the carefully each and every option. Stage 1 of drug development process, stage 2 of drug development process, stage 3 of drug development process, all of the above. So basically GMP deals with which stage of drug development process. Now coming on the correct answer. The correct option is option C, means it is going to associate with this unit 3. Now coming on the explanation, what basically stage 1, stage 2, stage 3 is there. So the correct option for this question is option 3, means GMP is associated with totally stage 3 of drug development process and moving ahead on the other stages as well. Now coming on the explanation. So if you go through this diagram, definitely you are going to be well versed with this drug life cycle. Understand? So let's first understand about the drug development stages. So in earlier stage, each and every drug has to pass through the stage 1, that is discovery phase. Now after that it has to pass through the stage 2, that is totally non-clinical in nature. Make sure that stage 2 is non-clinical in nature. Stage 3 is clinical in nature, means here studies on human beings is involved. जैसा कि आप सभी सुनते हो कि clinical trial हुआ phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Then after that stage 4 is associated with this post approval, means post marketing approval. Understand? So it approximately takes 12 hours, but right now we have seen the case of COVID-19 vaccine. Within a year we have discovered the vaccine. So कितना हम लोग डेवलप हो चुके हैं, कितना एडवांस हो चुके हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं how technology has been evolved and how we are using the best use of this technology. So now coming on the more explanation. Good manufacturing practice. Three terms are there. One GMP is there, one GCP is there, one term is GLP is there. GMP means good manufacturing practice. कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है. GCP means good clinical practices. ठीक है. GLP means good laboratory practice. तो ये सारे वर्ड एक दूसरे से थोड़े से मिलते जुलते हैं, इसको समझने की जरूरत है. सो GMP किससे डील करता है? स्टेज 3, जो कि करेक्ट ऑप्शन था अभी क्वेश्चन का. एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ लाइफ, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में जीएमपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. जीएमपी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेज 3 ऑफ डेवलपमेंट. अंडरस्टैंड? एंड थ्रू आउट द ड्रग होल लाइफ. तो आपको ये बात समझनी है. जीएमपी अप्लाइज टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआईज, ड्रग सब्सटेंसेज एंड फॉर्मुलेटेड मेडिसिन. ये जीएमपी इन सब पे अप्लाई होता है. तो ये भी सवाल एक आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है और किस स्टेज से शुरू होता है, ये भी चीज आपको समझ में आनी चाहिए. स्टेज 2 जिसकी हम बात कर रहे थे, उसमें जीएलपी आती है. तो ये जो जीएलपी की जिसकी मैंने बात की, ये गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, तो स्टेज 2 से कौन रिलेट करता है? जीएलपी. और स्टेज 3 से कौन रिलेट करता है? जीएमपी. ये बात आपको याद रखनी है. ठीक है. एंड बेसिकली जीएलपी स्टडीज आर टर्म्ड एज नॉन क्लिनिकल. These are not clinical nature, means they are not performed in human beings. Understand? ऐसी सारी स्टडी जो ह्यूमन बींग्स में नहीं परफॉर्म की जाती है उनको नॉन क्लिनिकल बोलते हैं. एंड जीएलपी इज एसोसिएटेड विद दिस नॉन क्लिनिकल स्टडीज, जिनका प्राइमरी मकसद क्या होता है? सेफ्टी टेस्टिंग, टॉक्सिकोलॉजी एंड सेफ्टी फार्माकोलॉजी स्टडीज. अंडरस्टैंड? फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज, बायोलबिलिटी स्टडीज. अंडरस्टैंड? सो ये सारी चीजें हम लोग समझ सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन दी स्टेज 3. तो स्टेज 3 में हमने अभी देखा कि स्टेज 3 से क्या एसोसिएटेड था? जीएमपी. लेकिन अगर जीसीपी की बात की जाए तो जीसीपी मतलब गुड क्लिनिकल, क्योंकि स्टेज 3 वो क्लिनिकल. सो जरूरत किसकी पड़ेगी? गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस. क्लिनिकल ट्रायल भी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के तहत होना चाहिए. ठीक है. तो व्हाट गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस इज देयर? बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ए क्वालिटी स्टैंडर्ड, एथिकल कंडक्ट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस. मींस रेगुलेटरी कंप्लायंस होना चाहिए,
एथिकली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह आप आदमियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस तरीके से नहीं। यू शुड हैव टू टेक द कंसेंसस बिफोर स्टार्टिंग दिस होल एक्सपेरिमेंट। आपको बेसिकली इफ यू आर इन इंडिया आपको डीसीजीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। अब उसमें भी अगर आप क्लिनिकल में जाओगे तो फेज 1 इज देयर, फेज 2 इज देयर, फेज 3 देयर। सो हियर यू कैन सी इन दिस केस ऑफ फेज 3 full scale is there, multi center means inside India different centers are there, different हॉस्पिटल में ये सारी चीजें हो रही होती। क्लिनिकल एफिकेसी तो अभी आप लोग देख रहे होंगे, आपने रिसेंटली सुना होगा जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोवैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल डेटा आ चुका है जिसमें कि 25,000 पीपल हैज बीन इन्वॉल्व, ठीक है। तो फेज 3 एक ब्रॉड डेटा होता है, जबकि हर स्टेज का अलग अलग मकसद होता है। फेज 2 में डोज इफेक्ट रिलेशनशिप हम लोग चेक करते हैं, और फेज 1 में क्या करते हैं हम लोग टेस्ट करते हैं ड्रग को और ह्यूमन फार्माकोकाइनेटिक्स के साथ उसको देखते हैं, थोड़ा सा टॉलरेंस वगैरह देखते हैं कि कितना डोज जो है टॉलरेट कर सकता है वो बंदा। एंड फोर्थ स्टेज इज पोस्ट अप्रूवल, मींस वंस स्टेज 3 हैज बीन क्लियर इट विल गो फॉर द अप्रूवल फॉर द मार्केटिंग। देन आफ्टर दैट पोस्ट मार्केटिंग अप्रूवल डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। ऐसा नहीं कि ड्रग को अनाज छोड़ देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होती है देन फार्मेको विजिलेंस डिपार्टमेंट इज गोइंग टू कम इनटू द पिक्चर। तो आप लोग बहुत सारे बी फार्मा के लोग होंगे जो लोग चाहते होंगे कि हम लोग फार्मेको विजिलेंस में काम करें, तो यही है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग में सारी चीजें काम होती है, ठीक है। चलिए, तो फार्मेको विजिलेंस प्रोसीजर के थ्रू हम लोग काम करते हैं। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, तो इन क्वेश्चन पे डू नॉट फोकस ऑन द नंबर्स, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक नहीं आप 100 क्वेश्चन उस पे आज आप लगा लोगे। सो अनदर क्वेश्चन ऑन जीएमपी, अब देखो किस तरीके से आ सकता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फुल फॉर्म जीएमपी इज अ स्टडी परफॉर्म्ड ऑन ह्यूमन बीइंग्स। तो जीएमपी किससे रिलेटेड था? स्टेज 3 से, ठीक है। इट इज अ प्रोसीजर टू मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए हम लोग जीएमपी करते हैं। पार्ट ऑफ जीसीपी स्टडी, क्या ये पार्ट ऑफ जीसीपी स्टडी होता है? ऑल ऑफ द अबव। तो जरा इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जीएमपी इज नॉट द पार्ट ऑफ जीसीपी, अंडरस्टैंड, ये पार्ट नहीं होता। जीसीपी इज डिफरेंट, जीएमपी इज डिफरेंट। हालांकि दोनों स्टेज 3 में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, सो इट्स नॉट द पार्ट। तो ये ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, जब ये ऑप्शन गलत हो गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। तो इस टेक्निक को चाहे आप कोई भी एग्जाम दुनिया को दो, चाहे फार्मासिस्ट, डीआई, यूपीएससी, एसएससी, कुछ भी दो, तो आपने देखा कि ये ऑप्शन जैसे एलिमिनेट हो गया तो ऑल ऑफ द अबव तो एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग जरा देखते हैं कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो ये क्या इंसानों में होता है? नहीं, जीएमपी जो है इंसानों में नहीं होता, ये भी एलिमिनेट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। तो जीएमपी हम लोग इसीलिए तो करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छा प्रोडक्ट बने। तो ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक जो कि मैंने आपको अभी बताया, कभी क्वेश्चन ना आए तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ठीक है, आपको जरूर आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे। सो ट्राई टू यूज दिस टेक्निक विद दिस प्रैक्टिस। नाउ कमिंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो करेक्ट स्टेटमेंट यहां आपको ढूंढना, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं। कभी कभी यहां लिख सकता है, रॉन्ग भी लिख सकता है। कम्युनिकेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, अंडरस्टैंड। सो कौन सा करेक्ट? सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं जरा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन टोटली कम्युनिकेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग भी होती है, कस्टमर सेंट्रिक भी होती है, दोनों होती है। कैसे होती है जरा उसके एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एलिमेंट्स ऑफ टीक्यूएम। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेटेजिक सिस्टमिक अप्रोच होता है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होता है, कस्टमर फोकस जो कि आपके ऑप्शन में था, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोसेस सेंटर्ड होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन होता है, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है। सो कम्युनिकेशन भी आपका ऑप्शन में था, कस्टमर फोकस्ड भी आपके ऑप्शन में था, तो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट ऑप्शन। अब ऐसा नहीं कि अदर ऑप्शन में अगर ये है टोटल एम्प्लॉयमेंट या फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम, तो इस तरीके से ऑप्शन बदले जा सकते हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्लियर विद दिस। सो बेसिकली दैट क्वेश्चन वाज रिलेटेड विद दिस प्राइमरी एलिमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगेन इट हैज केम फ्रॉम द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं,
ऑल्सो नोन एज क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। बिल्कुल सही बात है ये। TQM डिस्क्राइब्स अ मैनेजमेंट अप्रोच। देखो इसमें लिखा हुआ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो जब मैनेजमेंट नाम में लिखा हुआ है, ये इसको कहते हैं ना क्लू छुपा होना क्वेश्चन में। इसी तरीके से अगर आप कॉमन सेंस थोड़ा सा दिमाग अपना खोल के बैठोगे एग्जाम में, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज योर कॉमन सेंस। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM डिस्क्राइब्स अ मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेंट्रिक था ही, ठीक है। जैसे कोई भी कॉलेज होता है तो वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, स्टूडेंट अप्रोच होता है। जितना बढ़िया स्टूडेंट को हम सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं पढ़ाई लिखाई से, जितना बढ़िया उनको हम गाइड कर पाते हैं, उतना ही स्टूडेंट आपके लिए अच्छा सोचता है, उस कॉलेज की रेपुटेशन बनती है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। अब जब दो ऑप्शन सही हो गए तो कोई एक ऑप्शन है मजबूरन में जो ऑल ऑफ द अबव हो ही जाएगा। अब इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे ऑल हो गया। जब एक से ज्यादा ऑप्शन हो गया तो आप देखो ऑल हो गया। जस्ट यूज द कॉमन सेंस इन द टर्म ऑफ एमसीक्यूज। तो ये कॉमन सेंस कब डेवलप होगा? जब ज्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। TQM इज अ मैनेजमेंट फिलोसफी दैट सीक्स टू इंटीग्रेट। अब TQM किसे कहते हैं? अब हो सकता है यहीं से क्वेश्चन बन जाए, तो ये TQM के बारे में मैंने बताया हुआ है। TQM is a management philosophy that seeks to integrate all organization function, marketing, finance, design, engineering, production, customer service, सब एक दूसरे। तो अभी आपने सुना होगा उसके में एलिमेंट्स में इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो मार्केटिंग फाइनेंस सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है, ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसको देख के ही पता लग गया हमें। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग, रट्टा मार के नहीं जाना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्यूबीडी। क्यूबीडी क्या बोलते हैं? क्वालिटी बेस्ड डिजाइन, क्वालिटी बेस्ड डिजाइन। ये क्या फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि क्वालिटी बेस्ड डिजाइन इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूएसएफडीए। कभी यूएसएफडीए आ जाए या एफडीए आ जाए, दोनों बात एक ही है, ऐसा नहीं बेहोश होकर गिर गए वहीं, ठीक है। एन इनिशिएटिव ऑफ सीडीसी, सीडीसी के बारे में जानोगे, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, एक ऐसी अमेरिकन, ये यूएसए बेस्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि बीमारी के बारे में बताता है। एन इनिशिएटिव ऑफ एमएचआरए, एमएचआरए क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कहां का? यूके की, ठीक है। तो क्यूबीडी से सही क्या है? नन ऑफ द अबव। तो इसमें सही स्टेटमेंट क्या है? जरा हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वैसे भी देख के लग रहा है सीडीसी ये हो नहीं सकता, क्यूबीडी इसका, एमएचआरए नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्यूबीडी। क्यूबीडी यूएस एफडीए का इनिशिएटिव है। याद रखिए अगर सीडीएसयू आ जाए तो भी ऑप्शन नहीं होगा। सीडीएसयू क्या है? इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसी है, ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ये इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसीज है, इसको क्यूबीडी को इसने। अब क्यूबीडी के बारे में जरा और देखते हैं। क्यूबीडी टूल्स। अब क्यूबीडी लागू करने के लिए कुछ चीजें, कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए होंगे, तो उसको टूल्स बोलते हैं। तो टूल्स में क्या होता है? डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, रिस्क असेसमेंट, प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको टैबलेट बनाना है, ठीक है। तो टैबलेट में आप स्ट्रेटजी लगाते हो कि डाइल्यूएंट कितना होना चाहिए, डिसइंटीग्रेंट कितना होना चाहिए, लुब्रिकेंट कितना होना चाहिए। तो आप फॉर्मूला 1 यूज करते हो, फिर फॉर्मूला 2 यूज करते हो, किसी में डाइल्यूएंट थोड़ा सा कम रखते हो, किसी में बढ़ा देते हो, तो देखते हो किससे टैबलेट सही बन रही है, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूला। तो आपने क्या किया? एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया कि पहले में हम लोग डाइल्यूएंट 50 mg ले लेना, इसमें 60 mg ले लेना, इसमें डिसइंटीग्रेट 10 mg ले लेंगे स्टार्च, इसमें 50 mg ले लेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को आप चेंज करके देख रहे हो कि टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में टैबलेट के पैरामीटर्स पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो? डिजाइन कर रहे हो। तो इसी को बोलते हैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। अंडरस्टैंड? रिस्क असेसमेंट, रिस्क को भांप लेना कि रिस्क कितना है, ठीक है। प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। सो बेसिकली आपको बता दूं, क्यूबीडी सब होता है, ड्रग डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट भी होता है, रिस्क असेसमेंट भी करते हैं, पैट भी करते हैं हम लोग। ये याद रखिएगा, प्रोसेस एनालिटिकल, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। सो पैट किसका पार्ट है? क्यूबीडी का पार्ट है। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, डीओई किसका पार्ट है? क्यूबीडी का पार्ट है। रिस्क असेसमेंट किसका पार्ट है? क्यूबीडी का। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑल ऑफ द अबव। लेकिन एग्जाम में ऑल ऑफ द अबव बहुत कम आएगा, आपको समझना पड़ेगा, इसी में कोई ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्यूबीडी के देख लिया जरा हमने, और भी क्यूबीडी के बारे में। अभी क्यूबीडी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो क्यूबीडी एलिमेंट्स इंक्लूड्स डिफाइनिंग। अब क्यूबीडी में एलिमेंट्स, अभी एक था क्यूबीडी होता क्या है, कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, और एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इसके क्यूबीडी के। तो क्यूबीडी इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपको। तो अभी एलिमेंट पे क्वेश्चन आ गया। तो क्यूबीडी एलिमेंट में क्या होता है? डिफाइनिंग टारगेट
टारगेट प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोफाइल, तो इसको लिख दिया जा सकता है TPQP, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, तो इसको CQA के नाम से लिखा जाता है एट्रीब्यूट्स। प्रोसेस पैरामीटर्स एंड सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। जरा देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि जो QBD है उसके एलिमेंट में टारगेट प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोफाइल TPQP ये भी इन्वॉल्व होता है, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट ये भी इन्वॉल्व होता है, प्रोसेस पैरामीटर भी इन्वॉल्व होते हैं, सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी सब इन्वॉल्व होता है, इसलिए राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो अब जरा QBD के थोड़ा कॉन्सेप्ट, QBD बार बार पूछा जा रहा है। तो QBD को बोलते हैं क्या फुल फॉर्म? क्वालिटी बेस्ड डिजाइन, यहीं से आप समझ लो इसको। अब ये होता क्या क्वालिटी बेस्ड डिजाइन, इसको हम लोग जरा समझते हैं। तो QBD किससे रिलेटेड है आपका? ICH की जो गाइडलाइन Q सीरीज की, ICH की जो Q सीरीज की गाइडलाइन है उसमें Q1A से लेके बहुत सारे Q2, Q3, Q7 GMP से रिलेटेड था, Q8, तो Q8 किससे रिलेटेड है? QBD से, ठीक है। फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट डिस्कस द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी बाय डिजाइन, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये फिगर 1 आपको पूरा सारी चीजें, फिगर 1 आगे है, मैं आपको दिखा रहा हूं क्या होता है। तो की एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं ये जरा आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक प्रोसेस होती है, यानी कि क्वालिटी बेस्ड डिजाइन जब आपको अपनाने जा रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द क्वालिटी बेस्ड डिजाइन, certainly definitely you have to follow certain steps. So first one is quality defined, पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा कि क्वालिटी टारगेट प्रोफाइल क्या है सबसे पहले, फिर उसके बाद क्वालिटी एट्रीब्यूट क्या है उसको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिए कि ये सब QBD से रिलेटेड है। अब क्योंकि थियोरेटिकल नहीं आ रहा तो आपको ये सब नाम सुने हुए होने चाहिए बिल्कुल। रिस्क असेसमेंट, देखो रिस्क असेसमेंट है, यानी QBD का पार्ट है रिस्क असेसमेंट। क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट भी किसका पार्ट है? QBD का पार्ट है, ठीक है। डिजाइन स्पेस किसका पार्ट है? ये भी QBD का पार्ट है। कंट्रोल स्ट्रेटजी किसका पार्ट है? वो भी स्टेप। तो ये सारे स्टेप्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछ सकता है कि कौन सा स्टेप किसके बाद है। सबसे पहले क्वालिटी टारगेट प्रोफाइल को आप डिफाइन करोगे, फिर आइडेंटिफाई करोगे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है, फिर परफॉर्म करोगे रिस्क मैनेजमेंट, फिर उसके बाद क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट को डिफाइन करोगे, फिर डिजाइन स्पेस को डिटरमाइन करोगे, फिर आइडेंटिफाई करोगे कंट्रोल, ये सारी चीजें। अब उसमें जो पहला स्टेप था QTP, एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या था, हमको क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को पता करना है। तो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कहते किसको हैं वो जरा समझ लेते हैं हम लोग। तो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, केमिकल फॉर्म में हो सकता है, बायोलॉजिकल फॉर्म में हो सकता है, या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल फॉर्म में प्रॉपर्टी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। दैट शुड बी विद इन एन एप्रोप्रिएट लिमिट, यानी कि क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट भी एक लिमिट में होना चाहिए, एक रेंज में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? टू इंश्योर द डिजायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि जो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट है वो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्ट की क्वालिटी में। अगर उसमें हेर फेर होता है, गड़बड़ ज्यादा होती, कम ज्यादा होता है, तो आपकी क्वालिटी खराब हो सकती है, अच्छी हो सकती है, दोनों हो सकता है। सो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड विद रॉ मटेरियल से भी होते हैं, जैसे ड्रग सब्सटेंसेस, एक्सिपिएंट से, इंटरमीडिएट से भी होते हैं, ठीक है, और ड्रग प्रोडक्ट से जब फाइनली बन जाता है तो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स रॉ मटेरियल से भी होते हैं, इंटरमीडिएट से भी एसोसिएटेड होते हैं, ड्रग प्रोडक्ट से भी एसोसिएटेड जबकि फाइनली बन गया होता है। तो कुछ हम लोग एग्जांपल जरा समझते हैं कि क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, जैसे ड्रग सब्सटेंसेस, अपीयरेंस, पार्टिकल साइज, मॉर्फिक साइज, वाटर कंटेंट, ये सारी चीजें, ये सब क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। मतलब क्वालिटी में कौन कौन असर डाल रहे हैं ये लोग, हैवी मेटल्स, रेसिड्यू, ऐसे ये सब असर डाल रहे हैं। टैबलेट में टैबलेट की अपीयरेंस मायने रखती है ना, अगर खराब अपीयरेंस होगी तो कौन खरीदेगा उसको। आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसको कलर करते हो, उसका हार्डनेस मायने रखती है, यूनिफॉर्मिटी मायने रखती है, उसका डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे सारे पैरामीटर्स जो उस डोजेस फॉर्म में इंपॉर्टेंट होते हैं उसी को क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स बोल देते हैं। तो टैबलेट के फॉर्म में ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, वाटर कंटेंट कितना है, ऐसे में कितना आया ड्रग जो है, ये सारी चीजें लेते हैं हम लोग। अब डिफरेंट क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स, ये सारी चीजें हम लोग जो है, एक प्रोसेस पैरामीटर होता है ना लास्ट में कि आइडेंटिफाई करना होता है, ये सारी चीजें। जैसे अब क्रिटिकल प्रोसेस यहाँ पे देखा गया, जैसे ग्रेनुलेशन करोगे तो मिक्सिंग टाइम, इंपेलर स्पीड कितनी होती है, टेम्परेचर कितना, जैसे ड्राइंग कर रहे हो तो ड्राइंग टाइम कितना होना चाहिए, तो ये सब प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। इनलेट एयर फ्लो कितना होना चाहिए, मिलिंग कर रहे हो तो मिलिंग का स्पीड कितना होना चाहिए, तो वो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट नहीं है, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर है, क्योंकि ये प्रोसेस डिफाइन कर रहा है। अगर ड्राइंग करोगे, बहुत ज्यादा उसमें पानी मिक्स कर दोगे
जब ड्राइंग टाइम बहुत ज्यादा होगा तो खराब हो जाएगा सैंपल, मिली में अगर बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी तो भी सैंपल खराब हो जाएगा। तो यानी कि ऐसे पैरामीटर प्रोसेस में कौन से अफेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर। ठीक है, ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और लोगों के साथ भी शेयर करिए जो भी आपके नोन में है, जानने वाले, चाहे जूनियर है सीनियर हो, क्योंकि इट्स टाइम फॉर दी एमसीक्यूज। बड़ी अनसर्टेनिटी है, कुछ भी कहीं से भी किसी का भी सेट आ सकता है, कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। देखिए, आपके इसके में पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको केवल आपका वक्त देना है, बहुत सारी चीजें। और इन्वर्टर अड्डा पे आपको एक भी आप वीडियो उठा के देख लीजिए जिसमें कोई क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया गया हो। ठीक है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं हम लोग करते हैं इन्वर्टर अड्डा पे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्वालिटी वाइज वीडियो मिलेगी और कोई आपको चार्ज यहाँ पे नहीं देना पड़ रहा है, आप आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पर, यहाँ पर तो है ही हम लोग, यूट्यूब पर। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हो तो आपको नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाती है वहाँ पे। मैं कुछ पोस्ट वगैरह इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, तो वो सारे आपके फार्मासिस्ट, जीपैट और बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। जस्ट काइंडली विजिट द चैनल एंड जस्ट गो फॉर द प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट को आप चेक करो, lot of information. So thank you so much, thanks for the watching, have a good day.